Very good evening, everyone. So today we are going to discuss our new topic of digital electronics. The name is counters. So first of all, we will have a brief introduction about the counter, and then we will go about the its circuit analysis, and then we will study about its application and other various parameters of counters. Okay, but I am currently having my coffee, so you have to bear the sip sound of having my coffee. Okay, so let's start. Counter, a counter by function, its function, a function by function is a sequential circuit consisting a set of flip-flops. So counters are the circuits which have set of flip-flops in a suitable manner to count the sequence. Why it is used for? To count the sequence. Okay, of the input pulses presented to it in the zero. So counter basically what is count? It is used for counting the sequence of the input pulses. So counters can be broadly classified into three. First, asynchronous and synchronous, single or multi-mode, and third is modulus counter. First, we'll study about asynchronous, which is ripple or cell counter. So asynchronous counter is the simplest counter in terms of the logical operations. It is the simplest counter in terms of the logical operations. Therefore, it is the easiest to design. So it is very simple in logical circuit operations. So it is very easy to design. We'll see it in how we are designing the our asynchronous counter or ripple cycle counter. We'll see in our further slides. Now, what is happening inside the asynchronous counter? In it, not all the flip-flops are under the control of a single clock. Okay, here clock pulse is applied to the first flip-flop only. So here, what is happening? The clock pulse is only applied to the single first flip-flop. So suppose this is the flip-flop. So clock pulse will be applied only to the first flip-flops, and later on clock will not apply to the directly not applied to the remaining flip-flops, which we call is LSB, least significant bit. From right to left we will go. Okay, you will understand my what I am saying, trying to say. Now, and the successful flip-flop are triggered by the output of the previous flip-flops. Therefore, counter has a cumulative setting time, hence its speed and operation is limited. So what does this lines means? Look here. This is the clock given only to the first flip-flop, and remaining flip-flops are getting clock from the output of the previous flip-flop. This flip-flop is getting clock from the output of the this flip-flop, and same here. So what is happening here? It is having the cumulative setting time, so the speed of operation is limited. There will be certain time delay of the operation to get this. Okay, because clock is applied only to the first, and later on when we will get the output from this, it will apply to this, and then we are getting output from B, we will be getting the output input clock of for C, and then output of C will be input clock for D, and later on this will be applied. Okay, so this is the schematic diagram, electronic diagram. Suppose this is the VCC is high, so all JK are on high, and clock is applied to the first flip-flop. Getting my point? So this is clock applied, and it is work on negative edge triggering. Means when it will be 0, it will feel like 1. Okay, negative edge triggering. So from here output is QA bar, and the QA is input to the B, and from the B out this QA will be work as clock for B, and for
output of B will work as clock for C, and the output of C will work as clock for D, and the MSB is QD, means the output will be considered from right to left. Now this is also known as 4-bit binary ripple counter. Let me have a sip of coffee. Now suppose this is the clock and this is the input. This is high, this is low, this is high, this is low, high, low, high, low, and high, low, so on. Very easy peasy, no worry about this. Now suppose we are having QA and it is working on the negative edge triggering. So whenever clock is 1, negative edge triggering means J and K is always 1. So toggle, they will toggle. So what will happen? Clock is going for here up to down, and in negative edge triggering what will happen? Whenever it will go negative, it will feel like 1 for QA. Okay, clock will 0 when negative edge triggering means whenever clock is 0, our output will be 1 for QA. Okay, so it will toggle QA, and again this up, this is down, it will again toggle from 1 to 0 here, and again this is 0 but this is down, means it will again toggle to up, and then only let me clear it for you. Up, down, sorry, up and down. Okay, so Genki are toggling the clock. Now what is QB? QB is having the output of QA clock. So negative triggering means whenever QA is down, it will go up. So QA down here, QA is down. Let me rewrite this. Oh my god. Delete. No, let's have a look on it. So here down is up, and then it will go like nothing has happened. Okay, till when? Up down till now, and then it will toggle, and again it will go here to here and here down, so it will again go up and so on. Okay, now the output of this B will be clock for QC. So whenever it will go down, it will go up. So what will happen? This will happen. Let me give a sec. I will rewrite it. So from here to here, no change. And as soon as the QBs go down, it will go negatively up. And again, it will work like this, because it only work on negative edge triggering. It will only fill the input whenever clock is 0. Now for QD it will go same. Now let's have a look. This condition, let's check the first condition. Whenever QC is 1 means QC is 1 here, so QC is 1 here, and in this condition QD is 0, QD is 0, QC is 1, and QB is this one, and QA is, sorry, this all 0 0 0 1 0 0 1 0. So 0 0 1 0 will be output. Let's check here. Let's check the first negative term. Let me, this is the first, this is the second, this is the third, this is the fourth, this is the fifth. So first of all will happen 1 1. Let me write it for you. This is 1 1
0 0 0 1 0 0 0. Okay, so output will be 1. QA is 1 0 0 0, output 1. And for second is again this is go down होगा में 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, output is 2. Now for 3 what will happen? For third, where is the third? Here is the third, means 1 1 0 0 1 1 0 0. So it means it is 3. So how many condition it will made? It will made 15. How many operations can count till 15? How we are getting this, that it can obtain the value of 15? Maximum counting is 2 to the power n, and we are using 4 counters, 4 flip-flops, so 2 to the power 4 equal to 16 maximum counting, because 0 is also included, so 0 to 15 it will count. This is 0 and till 15 all is 16. Now mode number or modulus counter. My coffee is about to finish. Let me finish it. Okay. Now this counter has 16 different state. So it is a mode 16 ripple counter. Why we say mode 16 ripple counter? The mode number of a counter is the total number of states its sequences true in each complete cycle. So एक cycle में जितनी वो true sequence measure कर रहा है उसको बोलते हैं उसकी mode number. So mode number is 2 to the power n, where n is the number of flip-flops. Okay. The maximum binary number counted by the 2 to the power n minus 1. क्यों? Why it is so? Because for 2 to the power 4 equal to 16, and how many it will count? 16 minus 1 equal to 15. Why? From 0 to 15 all will be 16. So we are getting the minus sign, 1 sign here. So coffee is finished. Okay. Thus a 4 flip-flop counter can be count up to 15. Now ripple counter फिर decoded output. चल अब रिपल काउंटर पढ़ना है अपने को, ठीक है. सो वही 3 सर्किट अपने ले लिया. ये कौन सा पढ़ा था अपनों ने इसके पहले वाला? 4 बिट है ना. अब 3 बिट वाला लेंगे. 3 बिट रिपल काउंटर. देखो ये 3 बिट रिपल काउंटर, तो इसमें डिकोडेड आउटपुट. इसमें क्या हो रहा है देखो, वही VCS दे दिए अपनों ने सबको. जे और के पे हाई है, जे और के क्या है, दोनों हाई है सब पे. क्लॉक गया यहाँ पे, बिल्कुल गया, कोई दिक्कत नहीं. जो आउटपुट लिया उसको यहाँ से दे दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या हो रहा है देखो, अपनों ने क्या लिया, एंड गेट लिए. क्या लिए? एंड गेट. कितने लिए? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8. क्यों लिए ऐसा? क्योंकि अपनों ने जब 3 लिए है, 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, तो कितने बिट तक जाएंगे? मैक्सिमम 7 बिट काउंट करेंगे. अब अपने को 7 बिट चाहिए, और 0 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, मतलब उसको 8 मानेंगे अपन, तो कितने लेने पड़ेंगे अपने को? 1 2 3 4 5 6 7 8. क्यों लेंगे ऐसा? क्यों? कितने कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे इन सब पे कॉम्बिनेशन बनेंगे. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 0 0 0 से लेके 0 0 1 0 1 0 1 0 0, फिर 1 1 0 1 0 1, फिर 1 1 0. ऐसा करके सब कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7, और एक और कॉम्बिनेशन को ऐसा 1 1 1. ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन अपने को ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए अपने को क्या करेंगे? अब देखो यहाँ अपने को क्या करना है, इसको बोलते हैं LSB, इसको बोलते हैं MSB. क्या करेंगे अपन? देखो ये अपनों ने लिया डी. अपने को आउटपुट क्या चाहिए? ये सारे हाई पे हैं, सारे क्या है? हाई पे हैं. तो 1
मतलब 0 0 0 चाहिए, तो मतलब क्यू सी बार, क्यू बी बार और क्यू डी बार का डॉट चाहिए अपने को। तो यहाँ से देखो क्यू क्यू ए बार, देखो इसको लिखने का तरीका भी ऐसे ही है ना, इधर से इधर क्यू सी बार कहाँ है, ये रहा क्यू सी बार को उठा के डी वन में डालो। क्यू ए बार क्या है, यहाँ से उठा के इसको वापस यहाँ डालो, ये डाल दिया। क्यू ए बार कहाँ है, ये क्यू ए बार उठा के यहाँ डाल दिया। तो जब क्यू ए बार मतलब जब नेगेटिव एच डिग्री में क्यू ए ऊपर जाएगा तो बार कहाँ जाएगा 0, और जब 0 0 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 का बार 1 का बार 1 का बार 0 आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे इसमें क्या चाहिए, क्यू सी बार क्यू ए मीन्स 1 का बार 0 0 और 1। तो क्या लेंगे अपन, देखो रख दो आउटपुट और क्या, क्यू सी बार क्यू बार क्यू ए बार। क्यू सी बार कहाँ है, ये रहा क्यू सी बार। क्यू बी बार कहाँ है, ये रहा क्यू बी बार, ये रहा क्यू बार लाइट वाला। क्यू ए बार का क्यू ए कहाँ है, ये रहा क्यू ए, ये येलो वाला, ये येलो वाला यहाँ से, सॉरी ये वाला ग्रीन मतलब ऑरेंज वाला यहाँ पे रख दिया। ऐसे अपने को सारे आउटपुट ड्रॉ करने पड़ेंगे। समझ गए? यू कैन डू इट, आई नो इट। नाउ रिपल काउंटर्स विच मॉड्यूलस लेस देन 2:1। अब रिपल काउंटर कर क्या रहा है, मैक्सिमम 2:n तक काउंट कर रहा है, पर अपने को मान लो काउंटिंग कम करवानी है। वी हैव नीड ऑफ the counter which doesn't count from 2:n, but our purpose is that counter should count less than 2:n. So how we will handle this problem? Now let's get a basic idea about it. The basic ripple counter is limited to a mode number that is 2:n. N is number of flip-flops. Okay, this value is actually the maximum mode number that can be obtained using n flip-flops. समझ में आ रही बात तुमको? जो नंबर है अपना उसको अपन मोड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एन फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। द बेसिक काउंटर कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस मोड नंबर लेस देन 2:n बाय अलाउइंग द काउंटर टू द स्किप द स्टेट दैट आर नॉर्मली अ पार्ट ऑफ द काउंटिंग सर्किट। तो क्या करेंगे अपन, मोड काउंटर क्या करता है, स्किप कर देता है एक स्टेट को। तो वो जब एक स्टेट को स्किप करेगा तो काउंटिंग में जाएगी नहीं, तो 2:n से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मोड 6 चाहिए अपने को, कितना चाहिए 6 काउंट करने वाला, तो अपना ऑप्शन क्या है 2:1 एक ऑप्शन 2 तक काउंट करेगा, काम में ले सकते हैं नहीं ले सकते, अपने को 6 तक जाना है। 2:2 कितना करेगा 4 करेगा, काम में ले सकते हैं नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि 6 तक जाना है। 2:3 काम में ले सकते हैं, यस क्यों, क्योंकि 8 अपने को कितना चाहिए 6, मतलब 2 को स्किप कर देंगे तो अपना 6 तक पहुँच जाएगा। तो लगाओ 3 लगा दिए, वही सबको VCC दे दिया, वही क्लॉक दे दी, यहाँ गई क्लॉक दे दी। अब एक स्किप करना है, क्या करेंगे यहाँ पे अपन, ये देखो यहाँ लगाएंगे नेंड गेट, क्या लगाएंगे नेंड गेट, और नेंड गेट में इनपुट देंगे QB और QC का इनपुट देंगे, QB और QC का इनपुट देंगे। और यहाँ पे रहता है एक रीसेटर रहता है, प्री सेट या क्लियर का बटन रहता है यहाँ पे, मतलब एक सर्किट रहता है, उसको अपन लगाएंगे आउटपुट में। ठीक है, देखो अब कैसे हैंडल होगा है, वही अपनों ने अपनी क्लॉक बना दी सब दूर। अब कितना डाउन मतलब नेगेटिव स्टेट में कब कब यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये 6 अपनों ने क्लिक बना लिए। क्यों ये क्या है, वही जब ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, फिर ये जब नीचे जाएगा तो ट्रिगर होकर 0 पे चलाएगा, फिर नीचे जाएगा ट्रिगर हो गया अप, टोगल हो गया अप, फिर नीचे जाएगा टोगल हो के डाउन, फिर टोगल हो के अप, फिर टोगल हो के डाउन। अब देखो ये कब टोगल होगा, यहाँ पे जब ये ऊपर जाती है टोगल हो के, सॉरी यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे ये टोगल का है फर्स्ट यहाँ पे होगा नेगेटिव डिग्री में, है ना। इसका जो आउटपुट है वो इसका क्लॉक है, इसका आउटपुट इसका क्लॉक है। तो क्लॉक में जब नेगेटिव होगा तब जाके इसको 1 मिलेगा, ये 1 मिला, ये 1 मिला तो अब ये चलेगा कब तक चलेगा, जब तक ये डाउन नहीं हुए, अपना साइकिल कंप्लीट ना करे, फिर डाउन, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर अप, और फिर ऐसे चलता रहेगा। QC कब अप होएगा, जब ये वाला डाउन होगा, मतलब यहाँ पे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो आउटपुट कब मिला, देखो अपने आउटपुट क्या मिला, यहाँ पे क्या है देखो 1 0 0, नीचे से देखते हैं 0 0 1, क्या होगा 1, यहाँ क्या मिला 0 1 0 1, यहाँ पे क्या मिला 0 1 1 3, यहाँ पे क्या मिला 1, बड़े डाउन इसलिए 0 डाउन इसलिए 1 0 0 4, फिर क्या मिला 1, ये ऊपर है इसलिए 1, ये डाउन इसलिए 0, ये ऊपर इसलिए 1, सो 1 0 1 5। और देखो यहाँ पे क्या मिला 6 मिलेगा क्या, देखो अपने को, देखो ध्यान से देखना है ना, ये क्या है अपर 1, ये गया अपर 1, और ये क्या था 0 1 1 0, 6 मिलना था, पर क्या हुआ देखो यहाँ पे लगा दिया अपनों ने इनपुट, किस में नेंड गेट वाले में, QB और QC। तो QB और QC दोनों 1 मिलके कहाँ जाएंगे, ये 1.1 मिलके यहाँ गए, और ये नेंड गेट इसलिए 1.1 मिलके क्या हो गया 1 का बार तो 0 हो गया। तो ये क्या हुआ है, जो अपनी क्लियर का बटन था उसने क्या कर दिया 1 को 0 में कर दिया ऑन होते ही, ये दोनों 1 मिलते ही वो ऑन हो गया, इसने 0 कर दिया और आउटपुट दे दिया, और ये सब क्या हो गए रीसेट हो गए, ये सारे सब क्या हो गए यहाँ पे रीसेट हो गए, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गए, वापस पूरी प्रोसेस चालू हो गई। तो अपने क्या किया, जो 1 1 0 वाली कंडीशन 6 वाली कंडीशन थी उसको रिवर्स कर दिया, उसको स्किप कर दिया। पर क्या हुआ, स्किप करने में टाइम लगा, क्यों कि जितनी देर के लिए 1 1 आ गया तो आ तो गया वो,
मीन्स एक्टिव स्टेट में आ गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब तक वो आउटपुट इस नेंड गेट में जाके वापस प्रीसेट होगा तब तक उतनी देर के लिए तो ये रहेगा, जिसको बोलते हैं ग्लिच। क्या बोलते हैं? ग्लिच। सो नोट दैट द waveform at the QB output continuous spike or glitch caused by the momentary occurrence of the 110 state before clearing. This glitch is very narrow and so would not produce any visible indication. It should be noted that QC output has frequency equal to 1/6 of the input frequency. Okay. So क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, देखो बताओ तुमको। तो जो अपना QC का आउटपुट है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसने एक साइकिल कंप्लीट कब करा क्यूसी ने, इसका साइकिल देखो कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ। तो इतने साइकिल कंप्लीट करने में इसके कितने पूरे हो गए, क्लॉक के कितने हो गए, 6 पूरे हो गए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/6, या इसकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी का कितना है, 6 टाइम्स है। ये बात है ना। सो फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अपने को पढ़ना है एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। डाउन काउंटर इज यूजिंग एन फ्लिप फ्लॉप्स काउंट डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्विस्ट बाय n-1 to 0। 3 फ्लिप फ्लॉप्स ले लो, ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स है, ये VCC सबको जे के हाई कर दिया। अब क्या, क्लॉक तो देनी है अपने को, क्लॉक तो देनी है, पर क्लॉक देने में ध्यान रखना है, क्या करना है, अब की बार जो यहाँ का बार वाला इनपुट है वो इनको देना है। ठीक है, अब की बार ये वाला देना है, जो बार वाला रिवर्स इनपुट है वो इनको देना है। देखो अब क्या मजा आएगा वही। अब देखो QA बार क्लॉक है किसके लिए, B के लिए। तो जब भी नेगेटिव एज टिकरिंग होगी तो B वाला अप होगा। पिछली बार क्या हो रहा, डाउन वाले में जा रहा था, अब की बार किस में, अप वाले में जाएगा, है ना। अब की बार QA बार ले लिया, तो जो काम वहाँ QA 1 में हो रहा था वो काम होएगा यहाँ पे QA 0 में होएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पिछली बार नेगेटिव टिकरिंग हो रहा था तब कर रहे थे, इसमें तो वही होगा नेगेटिव टिकरिंग में। यहाँ जब डाउनवर्ड होगा 1, वो यहाँ फिर बदलेगा, ये तो तुमको पता ही है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होगा, टोगल करते जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जब भी अप गया तो उसको सिग्नल मिल गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्टेट में ये क्यू है तो क्यू बार कितना हो गया, 0। जब QA 1 तो QA बार कितना हो गया, 0। और नेगेटिव स्टेरिंग में क्या होता है, 0 पे तो 1 आता है, तो ये 1 आ गया। कब तक चला, यहाँ तक चला, जब तक फिर अप नहीं हुआ, फिर अप नहीं हुआ। अब देखो इसका जो QB बार, ये QB है, मतलब इसका बार, इसका इनपुट है C का, तो यहाँ पे 1 है, तो बार में क्या हो गया, 0, और 0 मिलते क्या हो गया, क्लॉक एक्टिवेट हो गया नेगेटिव स्टेरिंग में, तो इसका क्या आ गया, अप आ गया। कब तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, मतलब फिर यहाँ पे अप आया तो अब की बार क्या मिला, 0 मिला, तो क्या हो गया, नेगेटिव बंद हो गया, टोगल कर गया, मतलब सुन रही बात। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 7 1 1 0 6 1 0 1 5 1 0 0 4, अब है 1, अब है 1, अब है 1, तो ये क्या आया, 3। सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, मैंने गलत लिख रखा है, ये 0 पे चला गया ना, यहाँ पे 0 1 1 3, ऐसे 2 1 तक चला जाएगा, है ना। फिर उसके बाद वापस सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वैसे भी 0 0 0, यहाँ पे 1 आता है तो 1 1, 10 मतलब 2, 11 मतलब 3, 100 मतलब 4, 101 5, 110 6, और 111 मतलब 7। तो ध्यान रखना है ना, कुछ भी नहीं करना है, 0 0 लिख दो, 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, सो द मेजर एप्लीकेशन of down counter lies in situation where a desired number of input pulses that has occurred to it to be found. In this situation, down counter is preset to the desired number and then allowed to count the as pulses are applied. वही जो पूरी मैंने बताई प्रोसेस, वही प्रोसेस है। Now synchronous parallel up counter क्या है इसमें, a synchronous counter is simplest but its operation is slow because the propagation delay time of all flip flops cumulative and the total settling time is the product of the total number of flip flops. Another problem encounters here with the ripple counter is the glitches with the, वही glitch आ रहा है ना, उस सब वही लिखा हुआ है, समझ सकते हो तुम। देखो कैसे करेंगे इसको, यही करो, इसको रिमूव करना है ग्लिच को, तो क्या करेंगे, अब की बार सबको क्लॉक दे दो, अब की बार सबको ऑन नहीं, सबको क्लॉक देना है, तो सबको क्लॉक मिल गई, क्लॉक मिल गई। अब पे अब यहाँ पे विशेष जे और के को विशेष दे दिया, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो दोनों को इनपुट दे दो, इसको बाहर ले लो, इसका जो आउटपुट है वो क्या करो, बाहर ले लो, और यहाँ नीचे इनपुट दे दो, है ना,
और वही यहाँ पे इनपुट गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, इनपुट ले लो और QC इसको क्लोज दे दो और ये बाहर ले लो। अब देखो हुआ क्या है, ये जो अपना दो डायोड लो D1 और D2, यहाँ पे क्या करो कि एक तो QA ले लो जो अपना वहाँ से यहाँ आया, और इसको QB दो, QA लेके QB दे दिया यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट है वो डाल दो यहाँ पे J और K में। समझ में आ रहा? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज नहीं है, बाकी के रिमेनिंग फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है, एंड गेट के थ्रू दोनों के इनपुट लेके आउटपुट दूसरे में देना है। सुनो मेरी बात वापस से, वॉट वी आर डूइंग, फर्स्ट इज नो चेंज, बट फॉर सेकंड वी आर यूजिंग एन एंड गेट एंड इनपुट ऑफ फर्स्ट, सॉरी आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड आउटपुट ऑफ सेकंड वी आर applying to input of the AND gate, and the output of the AND gate we are applying to the input of the next flip flop. This is the process. Now same here, what will we do, output of this, what is output of QB, and output of this QA, and output of this QC. Cumulative output will go to the input of the remaining output, and then it will go. So here QA dot QB, and here QA QB QC. So it calls 4-bit synchronous counter. In a parallel counter, all the flip flops change their states simultaneously such that they all are synchronized with the negative transition of the input clock. अब वो क्या है, टोटल डिले टाइम कितना है, वही प्रोपेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जितना होता है TP, और डिले ऑफ एन एंड गेट T, तो 1/TP प्लस TJ। वो अब था, अब पढ़ना है डाउन काउंटर, सेम टू सेम डाउन काउंटर। क्या करो, डाउन काउंटर में कुछ भी मत करो, जो अब की बार अब दे रहे थे उसको अपन बार में ले लो, ठीक है, समझ में आ रही बात, बार में ले लो। तो अब यहाँ कर रहे थे अपन, यहाँ पे अब में ले रहे थे, तो इसका क्या करो, बार कर दो अप्लाइड, और इसका QB का अप्लाइड कर रहे थे, कर दो सेम, वो तो कर यहाँ भी QB ले रहे थे, QB का बार अप्लाइड कर दो, बार अप्लाइड जो आउटपुट आएगा उसको दे दो इसमें। और यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट में क्या करो, QC का बार, QB का बार और QA का बार लेके इनपुट में डाल दो, ये 4-bit डाउन काउंटर, ठीक है। सो थैंक यू। So please